यहाँ से क्या किया गया है, वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड द पेरिकार्डियम, राइट. सो द स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन सी आर बेसिकली द चैम्बर्स. वी नो दैट हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैम्बर्स. एक रिसीविंग चैम्बर है और एक डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है. तो सबसे पहले जो हमें स्ट्रक्चर्स देखना है, दिस हार्ट कंसिस्ट ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहा है वो है ऑन द राइट साइड. सी दिस इज द एट्रियम, है ना, राइट एट्रियम. राइट एट्रियम का अपर में आप देख सकते हो लिटिल एक्सटेंशन, दिस इज नॉन एज द राइट ऑरिकल. दिस large structure over here, this is going to be the right ventricle. On the other side, this is going to be the left ventricle, and the left atrium जो है, it is not visible from the anterior part. Posterior में आप देख सकते हो, this is the left atrium. Now the left atrium जो है, इसको कैसे identify करते हैं? It has the openings of the pulmonary veins. ये जो pulmonary veins की opening है, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में होते हैं. इसको देखना तो आपको समझ आ जाएगा. राइट एट्रियम कैसे देखते हैं? राइट एट्रियम में वी हैव द ओपनिंग्स ऑफ द सुपीरियर वेना केवा. ये रहा, वी हैव द सुपीरियर वेना केवा, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, राइट. दिस आर द ओपनिंग्स. नाउ ये जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, दिस चैम्बर्स आर ऑन द सरफेस, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. एट्रियम, दोनों एट्रियम दे आर सेपरेटेड हियर. आप अंदर से अगर देखोगे दिस साइड, दिस इज द इंटरएट्रियल सेप्टम, राइट. Both the atrium, they will be separated by the interatrial septum. Both the ventricles, they are separated by the interventricular septum. It is going to be somewhere over here. Okay, this is the interventricular septum. The atrium and the ventricles, they are separated by this septum. This is the atrioventricular septum. Now याद रखना, ये जो हमारा atrioventricular septum होता है, this is in a C-shape form. ये ऐसे फॉर्म में होता है. सी शेप फॉर्म है. सी शेप में इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, ये एंटीरियर में ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा ने इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया है, राइट. सो ऑन द एंटीरियर पार्ट जो आपको ये एवी ग्रूव दिखाई दे रहा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द राइट साइड एंड द लेफ्ट, यहाँ पे द लेफ्ट साइड, लेकिन पोस्टीरियर में इट इज़ कंप्लीट. So the atrioventricular groove on the anterior side, we have the right atrioventricular groove. We will have the left atrioventricular groove. यहाँ पे the left atrioventricular groove. Then we are going to have the continuation, जो कि इसका posterior हो जाएगा, the posterior atrioventricular groove. Clear? Okay. Now let's look at the surfaces of the heart. Heart जो है, it consists basically of 3 surfaces, right? So the surface that you can see over here, this is known as the anterior surface, also known as the sternocostal surface. Anterior surface आप देख ही सकते हो, it is majorly formed by the right atrium and formed by the right ventricle plus 1/3 part of the left ventricle. Only half part of the left ventricle इसको contribute करेंगे. The second surface जो मेरे palm में rest कर रहा है, this is, याद रखिएगा, this is the diaphragmatic surface. So we have the anterior surface, we have the inferior surface, also known as the diaphragmatic surface. This diaphragmatic surface इस sternocostal surface या anterior surface के opposite होता है. जैसे anterior surface का maximum part right ने बनाया था, inferior का maximum part left बनाएगा, ठीक है. So the 2/3 portion is going to be formed by the left ventricle and only a small portion will be formed by the right ventricle, ठीक है. So this is the inferior surface. The third surface is this one. This is the posterior surface. This posterior surface is also known as the base. याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि हार्ट का बेस कहाँ होता है. आमतौर पे हम लोग वही बोलते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर किसी चीज़ में रेस्ट कर रहा है वही उसका बेस होना चाहिए था, बट हार्ट में बेस ये पीछे है, ठीक है. द पोस्टीरियर सरफेस इज नॉन एज द बेस, जहाँ पे हम लोगों को ये पल्मोनरी वेन्स के ओपनिंग्स दिखाई देते हैं. सो दिस इज द बेस, ठीक है. सो एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और द बेस, एंड दिस स्मॉल पोर्शन ओवर हियर, दिस इज द लेफ्ट सरफेस, ठीक है. सो वी हैव द लेफ्ट सरफेस. द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव एन एपेक्स. दिस इज द एपेक्स जहाँ पे मैक्सिमम हार्ट बीट हमें सुनाई देता है. Now this apex is entirely formed by the left ventricle. जब आप इसका surface marking देखोगे, always remember it is present 9 centimeters lateral to the sternum in the 5th intercostal space, ठीक है. लेफ्ट साइड में जब आप 5th intercostal space देख लोगे, वहाँ पे sternum से 9 centimeters lateral जाना है, नहीं तो mid clavicular line से 1.25 centimeters medial भी आ सकते हो आप, ठीक है. वहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं, apex, वहाँ पे apex मिलेगा. Now see, usually जब आप इसका मोर्फोलॉजी बताते हो, तो मोर्फोलॉजी में हम लोग बोलते हैं द हार्ट कंसिस्ट ऑफ एन एपेक्स विच इज़ एंटायरली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल. द हार्ट कंसिस्ट ऑफ ए बेस विच इज़ फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम, जहाँ पे हमें ओपनिंग्स दिखाई देते हैं, स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द राइट एट्रियम. सो वी हैव एन एपेक्स, वी हैव ए बेस, वी हैव 3 सर्फेसेस, द एंटीरियर सर्फेस, द इंफीरियर सर्फेस एंड द लेफ्ट सर्फेस, ठीक है. ये 3 सर्फेस होते हैं. प्लस वी हैव 4 बॉर्डर्स. वी आर गोइंग टू हैव 4 बॉर्डर्स. द फर्स्ट बॉर्डर जो हमें ऊपर दिखाई देता है, दैट इज़ द superior border. Now superior border थोड़ा सा oblique होता है and it is entirely for maximum part is formed by the left atrium.
ठीक है. सो वी विल हैव द सुपीरियर बॉर्डर ओवर हियर. द नेक्स्ट बॉर्डर इज द राइट बॉर्डर. राइट बॉर्डर स्ट्रेट होगा एंड इट विल कंटिन्यू फ्रॉम द सुपीरियर वीना केवा अप टिल द इंफीरियर वीना केवा. दिस इज द राइट बॉर्डर. ठीक है. सो द सुपीरियर बॉर्डर, द राइट बॉर्डर, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर जो आप ये देख सकते हो. दिस इज नॉन एज द इंफीरियर बॉर्डर एंड द इंफीरियर बॉर्डर स्ट्रेचेस अप टिल द एपेक्स. ठीक है. इस इंफीरियर बॉर्डर जो है राइट बॉर्डर के जहाँ पे टर्मिनेशन होगा वहाँ से आगे जाके ये एपेक्स तक, दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर एंड फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर दिस इज गोइंग एज द लेफ्ट बॉर्डर. ठीक है. सो वी हैव द सुपीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर. ठीक है. सो दिस आर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द हार्ट.